Hello students, this lecture is a part of the third lecture. Okay, in this lecture we are going to learn about the how to design CMOS circuit for a given Boolean equation. Suppose you have given a Boolean equation. I hope all of you know about the Boolean equation. In digital electronics you have learned about the digital logic circuits. Okay, so you have designed some Boolean equation through K-map. Over there you have designed some digital circuit also with the help of logic gates. Okay, so suppose you have given a Boolean function and you want to design a CMOS circuit. Okay, so in this lecture we are going to learn about this, how to design CMOS circuit for a given Boolean equation. Okay, now next slide. What is Boolean equation? Okay, so if we talk about in the field of digital electronics, okay, we use term Boolean algebra. For designing any circuit we have required some Boolean function. On the basis of Boolean equation, Boolean function, we can design a logic circuit. Okay, logic circuit means you are using some logic gates over there. Okay, so Boolean algebra is the mathematical foundation of digital circuits, as I told you. Okay, Boolean algebra specifies the relationship between Boolean variables, okay, which is used to design combination circuit using logic gates. Also you can design sequential circuits. Okay, here only combinational logic circuit mentioned, but also sequential circuits. Okay, and the truth table shows how you are giving the input and what will be the output. Okay, so relationship between the what is the input value and what will be the your output value. Okay, so it's truth table shows the logic circuit output response for all the input combinations. Okay, suppose you have 3 bits. Okay, so total number of combination will be 2 to the power 3 equivalent to 8. Okay, so for all 8 inputs you have output response. Okay, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रुथ टेबल से. Okay, now the Boolean operators are, this sign shows multiplication, this sign shows your addition, and this is your complement. Okay, so suppose somewhere written is a plus b, means you are operating with a or b. So here or is your logic gates. Okay, so plus means nothing, or operation, same as for multiplication and gate. Whenever you are doing multiply means you are operating with AND logic gate. And for complement you use the not a. Okay, so not logic is defined for inverting or complementing the output. Okay, so this is a little bit about Boolean equation. Our main goal is not Boolean equation. Our main goal is to how to design a CMOS circuit for a given Boolean equation. Now, so remember, whenever you are going to design CMOS circuit, okay, so these 2 points are very important. Okay, always remember these 2 points. Okay, for AND operation or AND logic. Okay, suppose आप कोई AND logic बना रहे हैं, so for AND logic PMOS will be in parallel and NMOS will be in series. Okay, so PMOS means we are talking about the PMOS transistor.
ओके, सेम हियर NMOS ट्रांजिस्टर। ओके, सो जब भी एंड ऑपरेशन आप डिज़ाइन करोगे, ऑलवेज रिमेंबर कि वो दोनों किस में होंगे, PMOS वाले जो भी ट्रांजिस्टर होंगे वो सारे पैरेलल में होंगे, और जो NMOS वाले होंगे वो सीरीज में होंगे। इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट, पुल अप नेटवर्क विल बी इन पैरेलल एंड पुल डाउन नेटवर्क विल बी इन सीरीज फॉर एंड ऑपरेशन, एंड फॉर OR ऑपरेशन जस्ट अपोजिट फॉर द एंड। ओके, जो भी एंड लॉजिक के लिए हम बोल रहे थे उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओके, सो फॉर OR ऑपरेशन PMOS will be in series and NMOS will be in parallel, just opposite of the AND operation. ओके, अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ओके, सो ओके, here is an example. You want to design a equation y equal to a into b plus c का whole complement. Okay, this is a bracket. So a into b plus c and complement over the whole function, and you want to a circuit design for a y equal to, so y is your output. Okay, now यहाँ पे देखते हैं इन दिस इक्वेशन, इसको हटा देते हैं अभी हम, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ रिमेंबर, whenever you are going to design a Boolean equation y, okay, so for this we always use NAND concept and NOR concept। ओके, NAND concept में क्या होता था, जो हमारे PMOS होते थे वो क्या होते थे, पुल अप नेटवर्क पैरेलल में होते थे फॉर NAND केस, और फॉर पुल डाउन नेटवर्क NMOS क्या होता था, सीरीज में होता था। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पे ये दोनों देखो A इंटू बी हो रहा है, सो A और B क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। NAND में भी क्या करते थे हम, A इंटू बी का होल बार, सो यहाँ भी क्या हो रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया कि जब भी एंड ऑपरेशन आए, PMOS विल बी इन पैरेलल, PMOS के जो ट्रांजिस्टर होंगे वो किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। सो हियर A इंटू बी, A मल्टीप्लाई विथ B। ओके, सो हमने क्या लिया, एक ट्रांजिस्टर तो A का हो जाएगा, एक ट्रांजिस्टर B का हो जाएगा, और ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में। सो यहाँ फिगर में देखिए, मैंने एक A बनाया और एक B बनाया, और इन दोनों को कनेक्ट कैसे कर दिया, पैरेलली। आप यहाँ पे देखो A एंड B आर पैरेलली कनेक्टेड। VDD से हमने ये बनाया। ओके, यहाँ पे हमने इन दोनों को क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है A इंटू बी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन के लिए क्या करते थे हम कि जो भी हमारे ट्रांजिस्टर होंगे PMOS वाले वो पैरेलल में होंगे। ओके, एंड जो NMOS में ये दोनों होंगे वो सीरीज में होंगे। ओके ओके, सो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। नाउ A इंटू बी तो हमने डिज़ाइन कर लिया। अब यहाँ पे सिंगल क्या है, अगर देखा जाए C है, ठीक है। सो अगर हम A इंटू बी को X मान लें तो दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्या है, C है, तो X एंड C क्या हो रहे हैं, प्लस, ठीक है, मतलब और ऑपरेशन हो रहा है। सो और ऑपरेशन में अगर हम बैक जाएं तो क्या होता था, फॉर और ऑपरेशन PMOS विल बी इन सीरीज, NMOS विल बी इन पैरेलल। मतलब PMOS जो है वो किस में होगा, सीरीज में होगा, ठीक है। सो हियर मतलब C और X क्या होंगे, दोनों सीरीज में होंगे, ठीक है। सो X का PMOS आप ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके हो,
ये आप कर चुके थे पीमोस। बचा किसका केवल सी का पीमोस, और ये सीरीज में किसके होगा एक्स के। सो हमने क्या किया, इसके एक सीरीज में हमने एक ही है यहाँ पे ट्रांजिस्टर बना दिया सी। ओके, सो ये एक तरह से किसका हो गया, ये इस एक्स का हो गया और ये सी का हो गया, और ये दोनों किस में हो गए सीरीज में बने हुए हैं। आप यहाँ देखिए दोनों सीरीज से कनेक्टेड है। ओके, ये और ये दोनों किस में हो गए सीरीज में हो गए। ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट जो आपने याद, 2 पॉइंट्स ये हैं, इन्हें याद रखना है बस। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं पुल डाउन नेटवर्क की। ठीक है, सो अभी तक आपने डिजाइन कितना कर लिया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, पुल अप नेटवर्क पीमॉस वाला। अब सेम इसी पे आ जाते हैं, ए एंड बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो जब ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो एनमॉस जो होता है ट्रांजिस्टर वो किस में होते हैं सीरीज में होते हैं। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है, एनमॉस विल बी इन सीरीज फॉर एंड ऑपरेशन। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सो यहाँ पे क्या किया हमने, ए एंड बी हमने किस में बना लिए सीरीज में। आप यहाँ देखिए एक ही साथ कनेक्टेड है, एक बना लिया, फिर ये ऐसे बना लिया। ओके, सो यहाँ पे सीरीज में आ गया। सी अकेला है कंपोनेंट, और सी अगर देखा जाए अगेन, अगर हम इसको एक्स मान लें, इसको सी, ये दोनों क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं। सो फॉर प्लस साइन फॉर और ऑपरेशन फॉर एनमॉस क्या होते थे, ये दोनों क्या होना चाहिए पैरेलल होने चाहिए, ऊपर से अपोजिट होना चाहिए। सो हमने क्या किया, ए और बी जो हमारा एक्स है ऑलरेडी बना है, इसके पैरेलल में हमने क्या बना दिया, एक सी बना दिया, और फिर क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक आपका पुल अप नेटवर्क, ये पुल डाउन नेटवर्क, और यहाँ से आपने आउटपुट ले लिया। ठीक है, नाउ एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नाउ सपोज यू हैव टू डिज़ाइन ए प्लस बी इंटू सी इंटू डी। ओके ओके, बिफोर मूविंग फर्दर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, एंड इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि रिमेंबर, जब भी अगर इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में गिवन है, मीन्स इक्वेशन में ओवरऑल बार लगा हुआ है। यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट है ऑलरेडी, इक्वेशन पहले से गिवन है आपको, ठीक है, जिसमें ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट है, तो वहाँ पे आपको इन्वर्टर एट द एंड नहीं लगाना है। ठीक है, सपोज आपके पास इक्वेशन होती y इक्वल टू सेम इक्वेशन a इंटू बी प्लस सी ओनली, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, तो वो आपको क्या करना पड़ता, जो भी आउटपुट आ रहा है उसके आगे आपको एक इन्वर्टर गेट लगाना पड़ता। इन्वर्टर का सर्किट हम लास्ट लेक्चर में डिज़ाइन कर चुके थे। ओके, क्योंकि आप लॉजिक कौन सा यूज़ कर रहे हो, नैंड गेट वाला। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एक सॉरी दिस इज, यहाँ पे एक बबल आएगा, दिस इज पीमॉस, और ये आपको कहाँ देना पड़ता, यहाँ पे। ओके, यहाँ से आप अब जो आउटपुट मिलता y, ये होता। ठीक है, सो ओके, सो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा है ओवरऑल इक्वेशन में, देन यू हैव टू डिजाइन अ इन्वर्टर। ओके, उस इन्वर्टर में जो भी आपका आउटपुट सर्किट का आ रहा है वो जाएगा एज ए इनपुट। ओके,
ना अब इस पे हम डिस्कस करने वाले थे। इक्वेशन क्या, a प्लस बी एंड मल्टीप्लाई विथ c इंटू डी। ठीक है, सो लेट्स सी अगर हमने इसे x मान लिया और इसे y मान लिया। ओके, सो x और y क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई मतलब x और y क्या होने चाहिए, पी मॉस में पैरेलल में होने चाहिए। ठीक है, x और y क्या होने चाहिए, पैरेलल में होने चाहिए। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बना दिया, आप ऐसे x और y लेके बना सकते हैं। ठीक है, सो ये दोनों हमने क्या कर लिए, पैरेलल में बना लिए। दिस इज योर, यहाँ पे बबल आ गया पी मॉस, यहाँ पे x, यहाँ पे y। ओके, नाउ अगर हम x को अकेले देखें तो x के अंदर क्या है, a प्लस बी। ओके, ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, और हो रहा है, और मतलब जो हमारा पी मॉस होगा वो किस में होगा, सीरीज में होगा। सो x को रिप्लेस किससे कर देंगे, x के अंदर क्या है, a प्लस बी, मतलब ये क्या होना चाहिए, कुछ ऐसे होना चाहिए सीरीज में, है ना। a, ये पी मॉस, ये भी पी मॉस, और a और b ये दोनों सीरीज में होने चाहिए। सो आप यहाँ देखो, ये दोनों मैंने क्या बना दिए, सीरीज में बना दिए। और ये ओवरऑल पैरेलल विथ y, ये आपका क्या है ओवरऑल y। y क्या है, c इंटू डी। c इंटू डी क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई मतलब पी मॉस इन पैरेलल। सो c और d देखो, आपको मैंने ये पैरेलल बनाया है। ओके, सो सेम फॉर पुल डाउन नेटवर्क। पुल डाउन नेटवर्क की बात करें, इसे हम x मान लेते हैं, इसे हम y मान लेते हैं, और x और y क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, ओके, सो नाउ डिजाइन सेम सर्किट for pull-up network we have designed. Now check whether this is correct or not. Okay, just think yourself on the basis of what I told you basic about the NAND and NOR, and check whether this is correct or not. So this is basically wrong circuit. Why? Okay, I will tell you. Here let's see, this is x and this is y. Okay, x and y. So x multiply with y means these two should be in series according to rule, but here x and y both are parallel. So for down network, pull down network, this is a wrong circuit. So what will be the correct circuit? Okay, this is how we already designed. Now this is x, this is y, these should be in series because here operation is going on, and so this is your x, because in x a plus b. Okay, a और with b, और में क्या होता था, NMOS के लिए पैरेलल होते थे. सो a and b should be in parallel, a and b in parallel, c in d here is multiplying. So for NMOS c and d should be in series, c and d in series, and both should be in series. So here this and this is in series. So this is the correct answer for the equation y equal to a plus b multiply with c into d का
complement. Okay, same answer will be for if we here there is no complement. यहाँ पे क्या अभी अगर ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, ये वाली जो होल फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट कर रखा है ये नहीं होता, तो आपको क्या करना होता, इसके आगे एक इन्वर्टर लगाना होता. ठीक है. सो जो भी आउटपुट आ रहा था वो किस में जाता, इस इन्वर्टर में, तब जाके आपको y मिलता. ये दिस इज VDD एंड दिस इज विल बी ग्राउंड, और यहाँ पे आपको y मिलता इन केस ऑफ अगर यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होता. और अगर कॉम्प्लीमेंट है then there is no need of the inverter. So in this way you can design all the CMOS circuit for a given Boolean equation, Boolean function. Okay, so this is for designing of the CMOS circuit for a Boolean function. In next lecture we will start with the fabrication. Okay, fabrication of the integrated circuit. What are the various steps involved to fabricate an IC? Okay, so thank you students.